Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Indian National Movement. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं about rise of Indian nationalism, early phase of Indian national movement, next phase of Indian national movement, about Gandhi and the freedom movement, about national movement after 1919, and about a case study. Now, rise of Indian nationalism. We belong to a nation, we are one, we are held together by bond of history, economic goals and cultural notes. This was the unique feeling of nationalism which arose in the heart of Indians in the second half of the 19th century after the revolt of 1857. This feeling motivated Indians to stand against a common enemy, the British government. और 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, जो क्रांति हुई थी, उसके बाद इंडियंस के दिल में एक फीलिंग आई कि वी आर इंडियंस और ये हमारा देश है, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं हमें उनसे बचना होगा, हमें उन्हें भगाना होगा क्योंकि एक सिंगल कॉमन एनिमी है इंडियंस का, दैट इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तरीके से छोटी छोटी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगी, कुछ मूवमेंट हुई जो ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो पाई। नाउ अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस। व्हेन नेशनल consciousness awakened among Indians, several associations were formed. The first political association to be formed was the Landholder Society at Calcutta in 1838. जो first political association यानी कि first political group जो बना वो कैलकटा में 1838 में बना था, जो कि लैंड होल्डर्स थे यानी कि जो जमींदार थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। In 1843 the Bengal British India Society was formed, followed by the Madras Native Association and the Bombay Association in 1852. Yet there was no all Indian organization, and with the establishment of the Indian National Congress in 1885 a platform was prepared for an organized national movement. और इस तरीके से छोटी छोटी ग्रुप यानी छोटी छोटी एसोसिएशन बनने लगी ब्रिटिशर्स के खिलाफ और एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अर्ली फेज ऑफ इंडियन national movement, and first is Indian National Congress. A need was felt for an all-Indian organization which would ideally involve the masses and would be more assertive in putting forward the demands of the people of India. Keeping this in mind, S.N. Banerjee started the All India National Conference at Calcutta in 1883. जब लोगों के दिल में ये फीलिंग आ चुकी थी कि वी आर इंडियंस और हमें ब्रिटिशर्स से हर तरीके से छुटकारा पाना है, ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगाना है, तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की नीड फील हुई, आवश्यकता फील हुई जो कि बहुत सारे लोग उसमें मेंबर बन सकें और जो लोगों की डिमांड है उनको पूरी दुनिया के सामने रख सके। तो इस तरीके से एस.एन. बनर्जी ने एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की, दैट इज फ्रॉम कैलकटा इन 1883। एट द सेम टाइम, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ A.O. Hume, a retired British civil services officer, along with that of some important Indian leaders, the Indian National Congress was set up in 1885. Their first meeting was held at Calcutta under W.C. Banerjee. 72 delegates from all over the country attended the Congress, and some of the leaders who attended the meeting were Dadabhai Naroji, S. Subramanyam Iyer, Ganesh Agarkar, etc. Next is about moderate phase. The early stage of the Congress was called the moderate phase. जो सबसे पहला नेशनल कांग्रेस जो सेटअप हुई उसका जो सबसे पहला फेज था, that was the moderate phase. As the leaders of this phase put forward moderate and reasonable demands on the British. Prominent leaders of this time were Dadabhai Naroji, R.C. Dutt, Gopal Krishan Gokhale, M.G. Ranade, etc. मेन डिमांड क्या थी? मॉडरेट जो ग्रुप था, मॉडरेट पीपल का जो ग्रुप था, जो कि नॉर्मल रिजनेबल डिमांड थी ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स के सामने सिर्फ वही डिमांड उन्होंने रखी थी जिनमें से था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कि जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं या जो भी प्रोविंस हैं वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। रिक्रूट इंडियंस फॉर हाई गवर्नमेंट पोस्ट एंड होल्डिंग द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस इन इंडिया। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो इंडिया में होने चाहिए और जो हाई गवर्नमेंट पोस्ट हैं उन पे इंडियंस को भी कंसीडर करना चाहिए। एंड रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री पर जो खर्चा कर रहे हैं उसको कम करना चाहिए। चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज टू एनकरेज ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें कुछ चेंज की डिमांड की ताकि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी डेवलप कर सकें। द मॉडरेट लीडर्स ऑल्सो वर्क टूवर्ड रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। द मॉडरेट लीडर्स बिलीव दैट द ब्रिटिश हैड हाई रिस्पेक्ट फॉर द आइडल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। इट वॉज अ प्रिवेलेंट व्यूज दैट द ब्रिटिश वुड listen to the just demands of the Indians, hence a need for raising awareness and expressing the feelings of the Indian public was strongly felt by the moderate leader। ये बिल्कुल बेसिक और जो जायज़ डिमांड थी वही मॉडरेट ग्रुप ने ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी, लेकिन कुछ ग्रुप लोगों का ऐसा भी था जो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये डिमांड पूरी हो। अगर नॉर्मली रखने से ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती हैं तो उनके ऊपर, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर दिया जाए। नाउ ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म। There was a group of Indians that referred to the moderates as mendicants and never approved of their methodology. Leaders like Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai led this group. Unlike the moderates, they were beginning to explore more radical method and objectives. The members of this group are generally referred to as extremists or radicals. और दूसरा ग्रुप जो कि मॉडरेट की जो काम का तरीका था उनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, उन्होंने एक अपना नया ग्रुप बना लिया जिसको एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल के नाम से जाना जाता था। दे स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड मस्ट fight for Swaraj self-government. The methodology they followed was strikes, हड़ताल्स, बाइकट, स्वदेशी एंड पैसिव रेजिस्टेंस। और ये क्या चाहते थे कि लोगों को, इंडियंस को अपनी जो खुद की ताकत है उनके ऊपर बिलीव होना चाहिए और उन्हें अपनी आज़ादी के लिए, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट के लिए खुद फाइट करनी चाहिए। इसलिए वो अलग अलग मेथड फॉलो करते थे इन कामों के लिए, जैसे कि स्ट्राइक करते थे, हड़ताल करते थे, या फिर बाइकट मूवमेंट था, या स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, या फिर पैसिव रेजिस्टेंस। नाउ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, जब नेशनलिज्म की फीलिंग जो है इंडियंस के दिलों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एकदम से अनाउंस किया कि बंगाल को पार्टीशन यानी इंडिया से अलग किया जा रहा है। बंगाल ऑफ दिस टाइम वॉज अ ह्यूज प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा टू। और उस टाइम बंगाल जो है एक ह्यूज प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें बिहार और ओडिशा का भी कुछ पार्ट सम्मिलित था, शामिल था। द ब्रिटिश justified by saying that for administrative convenience they divided Bengal। और ब्रिटिशर्स का कहना था वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करने के लिए ही बंगाल को सेपरेट कर रहे हैं। However, the real reason might have to be weaken the nationalist movement which was strongest in Bengal। लेकिन मेन रीज़न क्या था उनका रीज़न था जो नेशनल मूवमेंट हो रही है, यानी मॉडरेट और रेडिकल ग्रुप जो सब लोग मिल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो रहे हैं, उस ग्रुप को, उस मूवमेंट को कुछ टाइम के लिए रोक देना। The government separated East Bengal, which was dominated by the Muslims, and merged it with Assam instead of separating non-Bengali areas from the province. The scheme was published in 1903 and finally came into force in 1905. The partition of Bengal was widely criticized. All sections of the population rose up in opposition. सब लोगों ने इस चीज़ की
खिलाफत की एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड पब्लिक मीटिंग्स हुई हर जगह बंगाल में. The Congress launched a movement to end the partition. The day when the partition came into effect was observed as a day of unity and solidarity. It was also a day of mourning and no business was conducted in the entire province. The national movement instead of weakening became more mass based with the rise of new ways of protest like स्वदेशी and boycott. और इस तरीके से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ब्रिटिशर्स का सोचना था कि उससे जो नेशनल मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, लेकिन कम होने के बजाय जो नेशनल मूवमेंट थी, जो प्रोटेस्ट का तरीका था, वो और ज़्यादा लोगों में बढ़ गया था. नाउ व्हाट वाज स्वदेशी मूवमेंट? बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था उसको उस टाइम से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ फ्रॉम 7 अगस्त 1905. इसमें क्या कहा जाता था? इसमें इंडियंस को कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडियन गुड्स का यूज़ करें और जितने भी ब्रिटिश के प्रोडक्ट हैं, ब्रिटिशर्स गुड हैं, उनको बायकट किया जाए, उनका यूज़ ना किया जाए. एंड द टू मूवमेंट्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, नेशनल बैंक्स, chemical works and insurance companies. Volunteers delivered Swdeshi goods at the doorstep of every household. The movement spread to all classes and group of people. Most active participation came from school boys and college students. The government adopted repressive measures to crush the agitation, especially against the students. Processions and meetings were banned and leaders were imprisoned without trial. तिलक was sentenced to 6 years of rigorous imprisonment. और इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट ग्रुप था, चाहे वो स्कूल का था या कॉलेज का था, सबसे ज़्यादा उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में बढ़ चढ़ के भाग लिया और ब्रिटिशर्स ने स्वदेशी मूवमेंट को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की. इंडियंस को ऑफर भी दिया गया कि जो ब्रिटिशर्स गुड्स हैं वो उनके दरवाजे तक आएंगे, हर एक सुविधा उनको दी जाएगी. लेकिन ये मूवमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को और जो भी बॉयज़ थे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया विदाउट ट्रायल. जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक फेमस लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के, उनको भी 6 साल तक जेल में डाल दिया था. नाउ डिड यू नो Rabindranath Tagore led the protest movement against partition of Bengal. On the day of the partition, people throughout Bengal tried Rakhi in each other's wrist to show their solidarity and brotherhood. रविंद्रनाथ टैगोर जो भी एक फेमस लीडर थे प्रोटेस्ट के टाइम पर, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बंगाल में एक नई चीज़ शुरू की, दैट इज़ राखी. यानी एक दूसरे के व्रिस्ट पर वो राखी बांधते हैं जो कि एकता, ब्रदरहुड का प्रतीक दिखाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंसेस. मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यानी मॉडरेट और रेडिकल ग्रुप जो था उनमें क्या डिफरेंसेस थे, उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में क्या क्या चेंजेस थे. देयर वर डिफरेंसेस इन आउटलुक एंड पॉलिसीज बिटवीन द टू विच कुड नॉट बी इजीली रिजोल्व. मॉडरेट स्टिल थॉट दैट petition and appeals were the best method to demand a better administration. They wanted to use the method of boycott only in special circumstances. मॉडरेट का कहना था कि लीगल तरीके से यानी अपील करके या पेटिशन दे के सबसे बेटर तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी सूचना देने का या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी काम कराने का. किसी भी मेथड ऑफ बायकॉट को वो कभी तभी यूज़ कर सकते थे, तभी यूज़ करना चाहते थे जब ऐसे सर्कमस्टांसिस हों, स्पेशल सर्कमस्टांसिस हों, जब कोई चारा ही ना बचे, तब वो बायकॉट जैसी मेथड को यूज़ करना चाहते थे. एक्सट्रीमिस्ट ऑन द अदर हैंड एडवोकेटेड a widespread aggressions. They felt that the Swadeshi and boycott movement had developed a feeling of pride and confidence among the people and therefore they wanted an extension of the boycott movement.
दे एडवोकेटेड बाइकट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। दूसरा ग्रुप जो कि एक्सट्रीमिस्ट का था या कि हम बोल सकते हैं रेडिकल्स का था, वो चाहते थे स्वदेशी और बाइकट। ये लोगों के दिलों में प्राइड की और कॉन्फिडेंस की फीलिंग लेके आएगा कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और जितने भी एडवोकेटेड बाइकट ऑफ स्कूल्स, जितने भी ब्रिटिशर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, उन्होंने उनका भी बाइकट किया। Now, next phase of Indian national movement, that is from 1906 to 1916. इसमें शुरू हुआ, फर्स्ट है कैलकाटा सेशन ऑफ INC। बंगाल की पार्टीशन के बाद इतने सारी मूवमेंट्स हुई, उसके बाद in 1906 the Indian National Congress held its annual session at Calcutta. Dadabhai Naoroji was the president of this session. He tried to make the moderates and the extremists agree to certain common policies. The Congress declared suffrage or self-government as its goal. It declared that India must be governed by the elected representative of the people. This was a big event in the national movement. और इस तरीके से फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा में सेशन रखा गया, जिसमें कहा गया इंडिया में अब स्वराज होगा, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट होगी। इंडिया में वही रूल करेंगे जो कि इलेक्शन में विन करेंगे, यानी only elected representative of the people, they will govern the country. Next is split in the INC, that is Surat session. At the Surat session in 1907, the Congress split into two parts, the moderates and the radicals. After the Surat session, the moderates got complete control over the Congress and the radicals moved away from the party. और इस तरीके से 1907 में मॉडरेट ग्रुप ने पूरे INC को कंट्रोल कर लिया और रेडिकल्स को हटा दिया। द ब्रिटिश यूज दिस डिस्प्ले ऑफ डिसयूनिटी टू देयर एडवांटेज। दे फॉलोड अ टू-pronged policy of appeasing and pacifying the moderates by giving them concessions and deterring the radicals through repressive measures. और इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। उन्होंने जो मॉडरेट ग्रुप था उसको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बताई, अलग अलग डिस्काउंट्स के लिए उन्हें लालच दिया और बहुत सारे अलग तरीके भी बताए। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। In 1906, the Hindus and the Muslims had fought shoulder to shoulder during the uprising of 1857. The English committed great atrocities on the Muslims, and after the revolt of 1857, the Muslims were treated as the main organizer of the revolt and were discriminated against. Later, when the national movement gained momentum, the British began to favor the upper class Muslim. This was done to draw the Muslim away from the freedom struggle and dissuade them from joining the Indian National Congress. 1857 के बाद 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसका मेन कारण मुस्लिम्स को माना गया, एंड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मुस्लिम्स को बेटर ट्रीट नहीं किया गया, उनको मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट माना गया। एंड इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो अपर मुस्लिम थे उनको अलग अलग फेवर दिए ताकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज ना हो, उनसे दूर रहें। The British encouraged the Muslim leaders to start organizations which would further the interest of only their own community. इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मुस्लिम लीडर को सलाह दी कि उन्हें अपनी ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए जो सिर्फ उन्हीं की कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करेगी। They were told that any future government in India would consist mainly of Hindus as they were in a majority. उनका कहना था, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीडर्स को सिखाया कि जो आगे गवर्नमेंट जो आने वाली है यानी स्वराज जो आने वाला है, मेजॉरिटी पीपल हिंदू हैं इंडिया में, तो उनका ही राज चलेगा, तो इससे अच्छा अपना एक ग्रुप बनाया जाए। In 1906, a delegation of the Muslim leaders led by Aga Khan, the religious head of a Muslim sect, and Nawab Salmulia of Dhaka met Viceroy Lord Minto with the request that a separate organization for the Muslims should be formed with their aim of dividing the Indian people along religious lines. So, the All Indian Muslim League was formed और इस तरीके से All India Muslim League का शुरुआत हुई। Its objectives were to be loyal to the government, to protect the interest of the Muslims and to promote goodwill with people of all communities. और all Muslim
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसका क्या कहना था? सिर्फ गवर्नमेंट के साथ लॉयल रहना और जो मुस्लिम के इंटरेस्ट हैं उनको सुरक्षित रखना और सब लोगों के साथ, सारी कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे से पेश आना। The British did succeed to some extent in their effort to create a religious divide. इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो उनकी सोच थी, जो उनकी चाल थी, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं, रिलीजियस डिवाइड कर देते हैं हिंदू एंड मुस्लिम को। बट दे फेल टू completely stop the Muslims from joining the Congress. Muslim leaders like Maulana Abdul Kalam Azad, Muhammad Ali, Hakim Ajmal Khan and Mazharul Haq were an important constituent of the Congress and the national movement. In the early years, even the Muslim League failed to toe the British line and adopted the attainment of self-government as its objectives. हालांकि वो पूरी तरीके से इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल थे और पूरे जितनी भी नेशनल मूवमेंट हुई उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। नाउ here we read about Morley Minto reforms. The British tried to appease the moderates by announcing certain political concessions. In 1909, an act was passed on the suggestion of the Viceroy Lord Minto and the Secretary of State for India, Morley. This act is known as Morley Minto reforms or the Government of India Act of 1909. जब जो मॉडरेट ग्रुप था उन्होंने इंडियन नेशनल गवर्नमेंट को पूरे तरीके से उनके अंडर आ गई थी, तो ब्रिटिशर्स उनको बहुत सारे पॉलिटिकल कंसेशन या बहुत सारे पॉलिटिकल तरीके बता रही थी। तो उन्होंने जो उस टाइम वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो और उनके सेक्रेटरी मॉर्ले, उन्होंने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का नाम दिया गया। द एक्ट इंक्रीज द number of members in the provinces also. The legislative councils of Madras, Bengal, Bombay, Bihar, Odisha and Uttar Pradesh had 50, while Burma, Punjab and Assam had 30. The act provided for non-official majority. The official control was retained. और इस तरीके से जो प्रोविनेंशियल जो मेंबर थे उनके जो सदस्यता थी वो अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में बढ़ा दी गई थी और किसी में कम कर दी गई थी। नाउ अबाउट दिल्ली दरबार। In 1911, an imperial darbar was held at Delhi. This darbar was attended by Indian princes and by the British King George V and his queen. Two important announcements were made at the darbar. एक बड़ा दरबार लगता है 1911 में जिसको दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। क्या अनाउंसमेंट हुई थी इस दरबार में? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड। जो 1905 में जो पार्टीशन हुआ था बंगाल को उसका कैंसिल कर दिया गया। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। और पहले कैलकाटा जो कि ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी अब उसको शिफ्ट करके दिल्ली में कर दिया गया। नाउ ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। The repressive measures of the government against the anti-partition movement and the extremists resulted in growth of revolutionary activities. Extremist जो कि रेडिकल ग्रुप था उसको पार्टी से हटा दिया गया था। इस तरीके से जो रेडिकल ग्रुप था वो अपने ही तरीके से काम कर रहे थे, तो रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी थी उस टाइम पर काफ़ी बढ़ गई थी। The young breed of revolutionaries felt that passive resistance would not bring any success and the British should be expelled from India by force. कि जो मॉडरेट लोग हैं जो पेटिशन और अपील के थ्रू ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते हैं वो कभी भी अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होंगे। सिर्फ अगर ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है तो उन्हें फोर्सफुली हटाना होगा। दिस रिजल्टेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बाय द इंडियंस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। द मेथड्स ऑफ revolutionaries were entirely different from those of the extremists and the moderates. They were inspired by an intense love for the motherland and were spurred by enthusiasm to wrest freedom quickly from the hands of the foreigners by violent means. They formed secret societies
manufactured bombs and other arms and imported them from foreign countries whenever possible. They were involved in the assassination of unpopular British officials, propagated revolutionary ideas through newspaper, books, and pamphlets, and engaged themselves in activities to collect money for this purpose. They were influenced by revolutionary movements for freedom in Italy, Ireland, and Russia. जो रेडिकल ग्रुप था वो अलग तरीके से काम कर रहा था, अलग अलग बॉम्ब इकट्ठे कर रहे थे, वो अलग दूसरे फॉरेन कंट्रीज से कैसे जो आर्म्स हैं, हथियार हैं, उनको इंपोर्ट किया जाए, क्या तरीका हो सकता है, नए नए तरीके खोज रहे थे ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए वो पैसा कैसे जुटा सकते हैं, वो उसकी सोच रहे थे। न्यूज़पेपर, बुक, पैम्फलेट के द्वारा पूरे इंडिया में ये चीज़ स्प्रेड कर दी गई थी कि वी आर इंडियंस, हम अपने भारत देश से बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी फॉरेनर आकर यहाँ पर रूल करें। तो रेवोल्यूशनरीज जो हरकतें थी उस टाइम, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड द रेवोल्यूशनरीज डिड नॉट ट्राई टू जनरेट अ मास रेवोल्यूशन which remained their primary weakness. Instead, they chose to assassinate officials and attempted armed uprising by a chosen few with the help of Indian soldiers if possible. वो सिर्फ क्या कर रहे थे, जो भी हाई अथॉरिटी ब्रिटिशर ऑफिशियल थे उनको मार देते थे। किसी भी ब्रिटिश जो उनका कोई भी ऑफिस होता था उस पर हमला कर देते थे। इनकी एक वीकनेस थी कि इन्होंने जो रेडिकल्स थे, इन्होंने अपनी जो तरकीबें थी, अपनी जो सोच थी, वो ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ गिने चुने लोग ही इस ग्रुप में काम कर रहे थे। नाउ अबाउट अ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The First World War began in 1914. Between 1914 to 1918, the national movement in India strengthened. The British used Indian soldiers and resources to fight the war. और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स को यूज़ कर रहे थे वॉर में फाइट करने के लिए। द इंडियन लीडर्स होप दैट इफ दे एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर, देयर डिमांड वुड बी ग्रांटेड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। तो इंडियन लीडर जो थे, INC के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके जो लीडर थे, उनकी सोच थी कि अगर वो ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे तो शायद ब्रिटिशर्स उनके डिमांड को ग्रांट कर दें। Meanwhile, the Home Rule movement began, which was led by Bal Gangadhar Tilak. Tilak formed the Home Rule League. Soon, Annie Besant, who had founded the Theosophical Society, also joined the movement. The Home Rule movement spread all over India, demanding self-government. Meanwhile, जो बाल गंगाधर तिलक थे, एक फेमस लीडर थे, उन्होंने एक होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की जो कि इंडिया के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट इज अबाउट द लखनऊ पैक्ट। In 1916, the moderates and the extremists united at the Lucknow session of the Congress. At the same time, the Congress and the Muslim League signed the Lucknow Pact. They demanded self-government for India, although based on separate electorates. These developments strengthened the national movement. इस तरीके से 1911 में दोनों ग्रुप एक साथ हो जाते हैं और इंडिया नेशनल मूवमेंट जो थी उसको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी मजबूती मिलती है। नाउ अबाउट गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट। Mohandas Karamchand Gandhi arrived in India from South Africa in 1915 and became the leader of the masses. His prior experience of South Africa leading Indians in non-violent marches against racist restrictions had made him an international leader, and he had used his two weapons, satyagrah, that is fight for truth against injustice, and non-violence, that is ahimsa, non-injury to anyone, to win victories for the Indians. साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी वो पहले से ही वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुके थे, जो कि एक रेशियल मूवमेंट थी उसको ख़त्म करने के लिए, और उन्होंने दो फेमस वेपन उनके थे, वो सिर्फ दो वेपन के साथ काम करते थे। फर्स्ट इज सत्याग्रह एंड सेकेंड इज नॉन वायलेंस। द सेम वेपन्स he used in India too in winning freedom for the nation. Among the Congress leaders and reformers, Gopal Krishan Gokhale was probably the one who influenced him most. Gandhi ji regarded Gokhale his ideal and teacher.
जो उनके दो बेसिक प्रिंसिपल थे महात्मा गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले जो एक फेमस लीडर थे, वो सेम गांधी जी के इन्हीं दो जो इनके वेपन्स थे, सेम इन्हीं के चरण कदमों पर वो चलते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले एंड गांधी जी उनको रिगार्ड करते थे, गोखले इज आइडियल एंड टीचर। इनिशियली when he came to India, he traveled throughout the country by train to understand the people, their problems and get a glimpse of the overall situation. He led the local movements in Champaran of the indigo planters, in Kheda for the peasants and in Ahmedabad for the mill workers. He won the rights for the people in all the three places and enlisted supporters like Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad. पूरे फेमस होने से पहले, यानी कि नेशनल मूवमेंट में आने से पहले गांधी जी को सब लोग जान चुके थे, क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आए तो वो पूरे इंडिया को ट्रैवल कर रहे थे, पूरे इंडिया में घूम रहे थे, ताकि लोगों की जो नीड है, लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकें। उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के साथ मिलके उनको चंपारण मूवमेंट गांधी जी ने शुरुआत की, एंड खेदा for the peasants and in Ahmedabad for the mill workers. तो meanwhile वो वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन जैसे लीडर से मिल चुके थे। Now about national movement after 1919, and this is Montagu-Chelmsford reforms in 1919. जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर रहे थे, ताकि जो दो अपील हैं इंडियंस की नेशनल कांग्रेस की वो ब्रिटिशर्स मान जाएं। तो जब वॉर ख़त्म होती है, एक ब्रिटिशर्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करते हैं 1919 में, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना गया। इस एक्ट में क्या लिखा था? द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल was made bicameral, that is, it would consist of two houses, the Imperial Legislative Assembly and the Council of States. Elected members now form the majority in both the houses. No significant change was made in the power of these houses. And second, इनका कहना था, the system of diarchy or dual government was introduced in the province and the state subjects were divided into two, reserved and transferred. जो प्रोविंस सिस्टम है उसमें दो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. ऑल द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस, पॉलिस एटसेट्रा वर प्लेस्ड इन द रिजर्व लिस्ट and they were under the control of the governor and his council. Relatively less important subject जो थे ब्रिटिशर्स के, जैसे कि एडुकेशन, पब्लिक हेल्थ, वो दूसरे लेजिस्लेचर के अंडर कंपोज होंगे. रियल पावर दस रिमेन्ड विद द ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी कि जो रियल पावर है वो अभी भी किसके हाथों में रहेगी? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के. नाउ नेक्स्ट इज द रोवेल्ट एक्ट. जो ये एक्ट आया दैट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और द गवर्नमेंट एक्ट, इससे जो लोग थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे. इसीलिए पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में हर जगह प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हो रहे थे. जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आ गए थे. तो जो कंट्री है, मासेस है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया दैट वाज रोवेल्ट एक्ट इन 1919. तो इट एनीवन कुड बी अरेस्टेड एंड प्रॉपर्टी कुड बी सर्च्ड विदाउट अ वारंट, कि कोई भी जो प्रोटेस्ट करेगा उसको बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बिना किसी आंसरेबल के अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी विदाउट एनी वारंट. Also, anyone could be detained without a trial and special court would try people where there would be no provision for right to appeal. और ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा और उनको ऐसे कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पर उनके लिए कोई वकील नहीं होगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. It meant no appeal, no dalil and no wakil. This was in direct contravention of democratic principles and further aroused the anger of the people and increased the unrest in the country. और रोवेल्ट एक्ट की वजह से जो इंडियन हैं और ज़्यादा रेस्टलेस हो गए और ज़्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए. Now, did you know? Today in India, a person cannot be arrested without being given a reason for it, and he/she has the right to be brought in front of the nearest
magistrate within 24 hours. Moreover, a person arrested has the choice of defending himself, herself through a lawyer or personally. आज इंडिया में जो कोर्ट है किसी भी लोगों को, पुलिस जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट अ रीज़न, और 24 आवर्स के अंदर उसको जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। और जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया है उसके पास चॉइस होती है, वो अपनी प्रोटेक्शन में खुद जो सबूत हैं वो पेश कर सकता है या एक लॉयर भी हायर कर सकता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर दैट इज 1919। जब रोयल्ट एक्ट पास हुआ देन गांधी जी नेशनल पॉलिटिकल एरिना में आ चुके थे। He opposed the act and fixed 30 March 1919 as a day of hartal, fasting and prayer and penance and meetings and processions all over the country. रॉयल एक्ट के बाद सारे इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके थे और गांधी जी जो उस टाइम फेमस नेशन लीडर बन के उभरे, उन्होंने 1919 में 30 मार्च को हर एक जगह पूरी कंट्री में अ डे ऑफ हड़ताल, फास्टिंग एंड प्रेयर घोषित कर दिया गया। एंड द गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजर्स लाइक ब्रेकिंग ऑफ प्रोसेशंस एंड मीटिंग्स, लाठी चार्ज एंड इवन ओपन फायर एट डिफरेंट प्लेसेस, इम्प्रिजनमेंट एंड डिपोर्टेशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर एटसेट्रा टू सप्रेस द मूवमेंट क्विकली। और ब्रिटिशर्स इसके खिलाफ गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिशर गवर्नमेंट जो थी वो हर तरीके की कोशिश कर रही थी ताकि ये प्रोसेशन को अनसक्सेसफुल बना सके। उसके लिए लाठी चार्ज किया जा रहा था या अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी और जो लीडर्स थे उनको स्टेट से, देश से बाहर जेल में भेज दिया गया था ताकि जितना जल्दी ये मूवमेंट है ये ख़त्म हो सके। बट द वर्स्ट इंसिडेंट अकर्ड इन पंजाब, particularly at Amritsar where the tragedy of Jallianwala Bagh took place. Punjab was hot with agitation. Gandhiji was not allowed to enter Punjab. Some leaders were deported from Amritsar on 10 April. On the same day, a peaceful procession in Amritsar was fired upon. In protest, the people held a meeting in Jallianwala Bagh on 13 April 1919. और उस टाइम जनरल डायर ने अपनी सेना के साथ फायरिंग का ऑर्डर दिया और बहुत सारे 100 ऑफ पीपल, मासूम लोग, बेकसूर लोग मारे गए। एंड अ वेव ऑफ हॉरर एंड इंडिग्नेशन swept over the country following the incident. Rabindranath Tagore surrendered the knighthood, the honorary title which was conferred upon him by the Queen of England. और इस प्रोसेशन से पूरे इंडिया के जो लोग थे वो हर तरीके से हिल गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको एक ऑनर मिला था क्वीन ऑफ इंग्लैंड से, उन्होंने वो अपने ऑनर को भी सरेंडर कर दिया। एंड Gandhi returned the Kesare-Hind medal given to him and for his service during the Boer War. और गांधी जी ने अपना जो उनको मेडल मिला था केसरे हिंद, उनको उन्होंने वापस कर दिया। Now here is a case study about खिलाफत movement and non-cooperation movement. What was खिलाफत movement? खिलाफत मूवमेंट यानी कि ये मूवमेंट जो थी ये मुस्लिम्स की थी, ये एक खिलाफत थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अली ब्रदर्स, दैट इज़ मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। जो ब्रिटिशर्स ने टर्की के साथ इनजस्टिस किया उसके खिलाफ इंडिया में खिलाफत मूवमेंट हो रही थी। टर्की वॉज इम्पोर्टेंट टू द इंडियन मुस्लिम्स। क्यों इम्पोर्टेंट है टर्की? क्योंकि जो सुल्तान ऑफ टर्की था उसको वो एज अ खलीफा अपने मुस्लिम रिलीजन का मानते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। द खिलाफत लीडर्स पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गिव बेटर ट्रीटमेंट टू टर्की। थ्रू दिस डिमांड मुस्लिम्स वर ड्रॉन इनटू द नेशनल मूवमेंट इन लार्ज नंबर। और ब्रिटिशर्स चाहते थे जो टर्की के लोग हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे ब्रिटिशर्स, इसीलिए जो मुस्लिम लोग थे वो भी नेशनल मूवमेंट में जुड़ गए थे। दिस मूवमेंट बिकेम अ part of the national movement. The Congress leaders joined the agitation and popularized it. Next है non-cooperation movement.
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब जानते हैं, 1920 से 22 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, जिसमें गांधी जी फेमस लीडर थे। गांधी जी ने हर एक तरीके से इंडियंस को आर्ग्यू किया कि उन्होंने किसी भी तरीके से उन्हें ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना है। द मूवमेंट एम्ड एट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रिप्रेशन इन पंजाब एंड देयर पॉलिसी टुवर्ड तुर्की। इट वॉज ऑल्सो फॉर द अटेनमेंट ऑफ सफराज। द मूवमेंट वॉज टू बी लॉन्च्ड इन स्टेजेस। इट स्टार्टेड विद द गिविंग अप ऑफ ऑनरी टाइटल्स रिसीव्ड बाय द इंडियन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो उनको ब्रिटिश सरकार ने ऑनर दिए थे, मेडल दिए थे, उनको वो रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद बायकट करते हैं स्कूल, कॉलेज, लॉ कोर्ट, इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि जामिया मिलिया एट अलीगढ़ एंड काशी विद्यापीठ एट बनारस वर स्टार्टेड बाय नेशनलिस्ट लीडर्स एंड फॉरेन क्लोथ्स वर burned and strikes and hartals were organized. Indians were asked not to pay taxes, not to work for the British and not to cooperate with the government. और इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई गांधी जी के लीडरशिप में, जिसमें इंडियंस ने हर तरीके से ब्रिटिशर्स को बायकट कर दिया था। और इस मूवमेंट के बदले बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये मूवमेंट खत्म नहीं होती। द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग दीज ईयर्स टर्न्ड इनटू अ पॉपुलर मूवमेंट लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गांधी जी। द मेथड्स ही एडवोकेटेड वर सो सिंपल दैट इवन द कॉमन पीपल कुड फॉलो देम। गांधी जी की वजह से ही ये जो नेशनल मूवमेंट थी ये सक्सेसफुल हो पाई, क्योंकि इनके जो मेथड थे वो बहुत ईजी थे, कॉमन पीपल जो आम आदमी थे वो इनको फॉलो कर सकते थे। डिस्पाइट बीइंग सिंपल दीज मेथड्स वर सो इफेक्टिव दैट द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू देम। और इस तरीके से इतने सारे मूवमेंट्स हुए जो कि लास्ट में नेशनल मूवमेंट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, जिनका ब्रिटिशर्स के पास कोई आंसर नहीं था। नाउ कम टू द की पॉइंट्स। The idea of nationhood started taking roots in India due to many reasons, and the growth of British rule was one of the important reasons. New political formations started to come into being during the end of 19th century. The Indian National Congress was formed in 1885 and was composed of English educated elite of the time. During the moderate phase of Congress, the main demand from the leaders was to have a say in the government, in the governance or some policies which could benefit Indians. And Bengal was partitioned in 1905 and this created huge protest, especially in Bengal. Gandhi ji arrived in India in 1915 and started a series of mass movements. The non-cooperation movement further entrenched the roots of the movement against foreign rule. इस तरीके से गांधी जी की लीडरशिप में हमने इंडियंस ने बहुत सारे मूवमेंट किए, नेशनल मूवमेंट किए, जो कि हमें फॉरेन रूल से आज़ादी दिलाने में सक्सेसफुल रहे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।